نمیرا ماشاءاللہ ماشاءاللہ، مجھے دو اسے. شجاعت دیکھیں بالکل ظفر کی کاپی ہے. پہلے یہ تو پتہ چلے کہ وہ آپ کا پوتا ہے بھی کہ نہیں. ہاں بالکل ٹھیک کہہ رہا ہے یہ، ورنہ وہ بھاگتی کیوں؟ ابھی بھی صرف جائیداد کی لالچ میں واپس آئی ہے. آفاق صاحب انہوں نے صاف کہہ دیا کہ شاد آباد نمیرہ بیگم صاحبہ کا ہے. کیا بولا تو؟ نمیرہ بیگم صاحبہ؟ شجاعت چاچا، یہ کیا کھیل کھیل رہے ہیں آپ؟ یہ کیسے ممکن ہے؟ کیوں ممکن نہیں ہے؟ نمیرہ ایک اچھی لڑکی ہے اور تمہیں پسند بھی ہے. میں ان کی بہت عزت کرتا ہوں اور میں نے اس نظریے سے کبھی سوچا نہیں. تو اب سوچو. برف پہ چلنے سے، برف پہ چلنے، برف پہ چلنے سے. آپ لوگوں نے تابندہ کو بتا دیا؟ کیا؟ تمہاری شادی طے ہو گئی محسن کے ساتھ. مجھ سے پوچھے بغیر کس نے کیا یہ فیصلہ؟ بیٹا، ہمارے گھرانوں میں بیٹیوں کے رشتے ہمیشہ والدین ہی طے کرتے ہیں. آپ کس زمانے کی بات کر رہے ہیں؟ اسی زمانے کی. تم نے جو حرکت ہوٹل میں کی ہے اس سے بابا جی کی ریپوٹیشن تباہ ہو سکتی ہے. تابندہ، محسن پڑھا لکھا اچھا لڑکا ہے اور سب سے بڑی بات یہ کہ خاندان کا لڑکا ہے، دیکھا بھالا ہے. وہ تمہیں زندگی بھر خوش رکھے گا. میں کوئی شادی وادی نہیں کر رہی. سن لیا آپ لوگوں نے؟ عدیلہ، اس لڑکی کا خیال رکھنا، کہیں کچھ الٹا سیدھا نہ کر بیٹھے. ممی آپ جائیں چاچا جی کے گھر اور جا کر تابندہ اور محسن کے رشتے کی فوراً بات کریں. ہاں مگر محسن مانے بھی تو. مانے گا، اس کا تو باپ بھی مانے گا. ڈپلومیسی، بلیک میل کچھ آتا ہے آپ کو بابا؟ کس بات کے سیاسی لیڈر ہیں آپ؟ میں بھائی صاحب سے منوا لوں گا، تم ٹینشن مت لو. اور ساتھ ہی نمیرہ کا رشتہ بھی پکا کر کر آنا. آفاق، تم اس بات کے پیچھے کیوں پڑ گئے ہو؟ تم اپنی ضد چھوڑ کیوں نہیں دیتے ہو؟ نہیں ممی، یہ ضد میں نہیں چھوڑ سکتا. مجھے اس سے بدلہ لینا ہے، اپنی خاندانی جائیداد واپس لینا ہے اور نمیرہ بھی. کیا ہو گیا ہماری اولاد کو؟ آپ دونوں بہت مصروف لگ رہی ہیں. نہیں نہیں، آؤ بیٹھو شجاعت، آ جاؤ. آنٹی، میں نے آپ کو نجمہ ویلفیئر فاؤنڈیشن کے بارے میں بتایا تھا، آپ کو یاد ہے نا؟ ہاں مجھے یاد ہے. بس آپ کو اس کا افتتاح کرنا ہوگا. کون سا دن رکھیں؟ یہ تو بہت اچھی بات ہے، افتتاح پر پریس والوں کو بھی بلانا. عدیلہ کو تو بلانا ہی پڑے گا. ضرور بلاؤ عدیلہ کو اور اس سے ڈونیشن بھی مانگو اور اس سے کہو کہ اسی وقت ادا کرے. مزہ آ جائے گا. نجمہ فاؤنڈیشن کے لیے ماجی نے انویسٹمنٹ کی ہے؟ نہیں، میرا کا آئیڈیا تھا، انویسٹمنٹ بھی اسی کی ہے. انکل، یہ سب شاد آباد کی آمدنی سے ہو رہا ہے، آپ کو کوئی اعتراض تو نہیں؟ نہیں، وہ پیسے تمہارے ہیں، جس طرح مرضی خرچ کرو، مگر اس کا کچھ فائدہ مجھے ملنا ہی چاہیے. آپ کے الیکشن کی مہم کا آغاز بھی وہیں سے ہوگا، آپ فکر نہ کریں. بہت خوب، بہت خوب. اچھا، اب میں چلتی ہوں، مجھے تھوڑا سا کام ہے.
क्या बात है शुजात, कुछ कहना चाह रहे हो? हाँ माँ जी, वो कहना तो वो है। शादाबाद के हाथ से निकल जाने से परेशान हो? नहीं माँ जी, मुझे तो कोई परेशानी नहीं है, मगर आफाक बेचोताब खा रहा है। सिर्फ यही या कुछ और भी? माँ जी, नुमेरा की फिक्र रहती है। क्यों? माँ जी जवान लड़की है, तन्हा है, सारी जिंदगी उसने अकेले गुजारनी है, और फिर आफाक भी उसका दुश्मन बना बैठा है। तमहीद मत बांधो, साफ साफ बात करो। वो माँ जी, हम सोच रहे थे कि नुमेरा और मोहसिन की शादी कर दें। तो ये मसला था? तो इसमें गलत क्या है? यूं तो कुछ गलत भी नहीं है, लेकिन इतना सही भी नहीं। मैं समझा नहीं। नुमेरा और मोहसिन दोनों नहीं मानेंगे। माँ जी, आप कहेंगी ना तो दोनों इनकार नहीं कर सकेंगे। मोहसिन के अपने एम्बिशंस हैं और नुमेरा ने अपनी जिंदगी दूसरे लोगों की फलाह बहबूद के लिए वक्फ कर रखी है। नहीं, हम भी तो यही चाहते हैं ना माँ जी कि घर का रिश्ता घर में ही रहे और बिलाल भी महफूज रहे और घर की दौलत भी घर में रहेगी। तो इसमें बुराई क्या है? मेरे हिसाब से वो एक दूसरे के लिए कंपैटिबल भी नहीं है और ये वक्त भी मुनासिब नहीं है इस काम के लिए। हाँ जी, ये काम तो जितना जल्दी हो जाए उतना अच्छा है। मुझे कुछ वक्त दो, मैं मोहसिन से बात करके देखती हूँ। ठीक है माँ जी। क्या बात है, ये ऐसे यहाँ क्यों खड़ी हो? डॉक्टर शाहिदा कहाँ है? कौन डॉक्टर? अच्छा, वो डॉक्टर शाहिदा। मुझे क्या मालूम? मैंने उसके घर अभी फोन किया, वो अभी तक नहीं पहुंची। ये है आपका वादा जिसे आप जेंटलमैन्स प्रॉमिस कहते हैं? जरा सी बात को अफसाना क्यों बनाती हो? आपके लिए किसी की जिंदगी और मौत मामूली होगी, मेरे लिए नहीं। क्या उसे ऐसा खुला छोड़ देता ताकि वो घर घर हमारी कहानी सुनाती फिरती? आपने उसे मरवा दिया? इतने अरसे बाद घर जाती तो उसके घर वाले उसे मार देते, और अगर जिंदा भी रहती तो मौत से बदतर जिंदगी होती। आपने मेरी जान बचाने के लिए एक बेगुनाह की जान ले ली। तुम्हारे लिए नहीं, जफर के बेटे के लिए, और उसके लिए मैं एक तो क्या कई जाने ले सकता हूं। मगर मैं इस गुनाह का बोझ उठाकर नहीं जी सकती। सियासत के मैदान में उतरी हो, ऐसे कई बोझ उठाने पड़ेंगे। अब बेहतरी इसी में है कि इस बात को भूल जाओ। आपको हर हर गुनाह का हिसाब देना होगा। ज़कावत, हमें यहाँ बुलाने की कोई खास वजह? जी,
हम माजी और नुमेरा के सामने ये बात नहीं करना चाहते थे। ऐसी कौन सी बात है? बात ये भाई साहब कि जफर ने ताबिंदा को ठुकरा कर उसका दिल तो तोड़ा ही है, हमारी भी बेइज्जती की है। अब वो इस दुनिया में नहीं रहा तो शिकवा कैसा? हम तो अभी इसी दुनिया में है ना। सबको ताबिंदा और जफर के रिश्ते के बारे में पता था। तो अब आप क्या चाहते हैं? देखिए, मोहसिन पढ़ाई से फारिग हो गया है। आप ताबिंदा को अपनी बहू बना लें और हम जी। और आप क्या? हम नुमेरा को अपनी बहू बना लेते हैं। देखें ना, इस तरह घर की बात घर में रह जाएगी और हमारे रिश्ते और मजबूत होंगे। नुमेरा आफाक को नहीं, वो नहीं मानेगी। वो मानेगी या नहीं, आप लोग तो पहले मान जाए। देखिए, आज तो आफाक मान गया है, कल क्या हो कुछ नहीं कहा जा सकता। और क्या पता कल नुमेरा किसी और से शादी कर ले तो आपके पोते का क्या होगा। वैसे इसमें हमारा ही नुकसान है। एक बच्चे की माँ से कौन कुंवारा लड़का शादी पर राजी होता है। और वैसे मेरी बेटी तो लाखों में एक है। दोनों प्रपोजल्स भी आप खुद ही दे रहे हैं और एहसान भी जता रहे हैं। मेरे मोहसिन को लड़कियों की कोई कमी नहीं है और ना ही नुमेरा कहीं भागी जा रही है। एक तो ये खवातीन बात बे बात झगड़ना शुरू कर देती हैं और असल बात वहीं की वहीं रह जाती है। अच्छा, आप लोग हमें सोचने का मौका दो। इसमें सोचने वाली कौन सी बात है भाई साहब, सब कुछ नजर के सामने तो है। मगर नुमेरा और मोहसिन से भी तो पूछना है ना, हम खुद ही तो कोई फैसला नहीं कर सकते। पूछने में इसी तरह वक्त गुजर जाएगा और मोहसिन भी जफर की तरह लंदन से किसी लड़की को आपकी बहू बनाकर लेकर आ जाएगा। हम आपको जल्द बता देंगे। लेकिन आप खुद तो राजी हैं ना? मुझे क्या एतराज हो सकता है? हम सब की बेहतरी भी इसी में है और ख्याल रहे कि आफाक अपनी जिद का पक्का है। ज़कावत भाई, आप हमें धमकियां ना दें, हम भी कांच के बने हुए नहीं हैं। नहीं, ऐसा न कहो। मुझे ज़कावत की बात से इत्तेफाक है। अच्छा, अब चले? हमें जवाब का इंतजार रहेगा भाई साहब। अच्छा भाई ज़कावत, हम चलते हैं। बस 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 मेरा, अरे नहीं रोते, इतना नहीं आंसू बहाते। मेरे से वादा किया था कि मैं उसे खैरियत से घर पहुंच जाऊंगी। मुझे तो इन जालिमों का अंजाम सोच सोच कर वहशत हो रही है। उठ मेरे, उठ, चल पानी पियो। शाबाश शाबाश, ऐसे थोड़ी रोते हैं कोई, क्या कुछ देखना तुम्हें। चल पानी। आपने मुझे क्यों बुलाया था? छोड़ो, अभी तुम वैसे इतनी परेशान। क्या कहूँ तुमसे, जान। नहीं दादी माँ, आप कहिए। अब मैं सख्त जान हो गई हूँ। मुझे तुम्हारे मुस्तकबिल का सोच सोच के घबराहट होती है। क्यों? तुमने अपने मुस्तकबिल के बारे में क्या सोचा? मैंने क्या सोचना है? आप ही की बताई हुई राह पर चलूंगी। अकेले? मेरा और है ही कौन? जब बिलाल बड़ा होगा तो मेरे साथ चलेगा। और जब तक बिलाल बड़ा होगा तब तक अकेले सफर तय करूंगी। कुछ पता भी है कितना कठिन है, कितने दुश्मन है इर्द गिर्द। दादी माँ, आप क्या कहना चाहती हैं?
तुम्हारे सास ससुर तुम्हारी शादी मोहसिन से करना चाहते हैं। क्या? ये कभी भी नहीं हो सकता। हो तो बहुत कुछ सकता है दुनिया में मेरा। मैं जफर की जगह किसी को भी नहीं दे सकती, और मोहसिन ने तो खुद आपको अपनी पसंद और इरादे का बताया था। एक दफा सोच लो नुमेरा, सफर बहुत कठिन, बहुत मुश्किलात आएंगी तुम्हारे रास्ते। आप ही ने तो मुझे हिम्मत दी थी, और अब आप ही मुझे कमजोर कर रही है। उस वक्त जफर था तुम्हारी जिंदगी में। मैं किसी से भी शादी नहीं करूंगी। आप उनको बता दीजिए। एक दफा फिर ध्यान दे दो इस बात पे। मोहसिन अच्छा लड़का है, और मेरे कहने से वो सोफिया को छोड़ भी देगा। हरगिज नहीं। मैं तन्हा जिंदगी गुजार सकती हूँ, मगर मोहसिन से उसकी खुशियां कभी नहीं छीन सकते। मॉम प्लीज, नहीं करनी मैंने किताबी कीड़े और फिलोसोफर से शादी। बेटा वो सीधा साधा सा बेवकूफ सा लड़का है, और फिर तुम्हें हर तरह की आजादी भी रहेगी। तुम्हारा जो दिल चाहे करती रहना। बोल दिया ना, नहीं करनी तो नहीं करनी। अच्छा ठीक है, तुम्हें मेरी बात समझ नहीं आ रही ना? आफाक को तो तुम अच्छी तरह से जानती हो, वो तुम पर सख्ती करने से भी गुरेज नहीं करेगा। मैं आपके कोई गांव की बकरी नहीं हूँ कि जिस खूंटे से दिल चाहे आफाक मुझे बांधे और मैं बन जाऊं। तुम्हारे इन्हीं करतूतों की वजह से तुम्हें तुम्हारे पसंद के मतलबी और खुशामदी दोस्त तो मिल सकते हैं, मगर अच्छा शौहर नहीं मिल सकता। ये सारी बातें आपको मुझे बिगाड़ने से पहले सोचनी चाहिए थी। अभी भी कुछ नहीं बिगड़ा। जरा ये तो सोचो, दोनों घरानों पर हमारा राज होगा। यहाँ मैं और वहां तुम। सारी दौलत, माँ जी की दौलत समेत हमारी होगी। बेटा दौलत के लिए तो लोग गधे को भी बाप बना लेते हैं, और मैं तो सिर्फ तुम्हें मोहसिन से शादी करने के लिए कह रही हूँ। आप देखना बंद करें मॉम, कल को आपकी बहू इस घर में आएगी और वो इस घर पे राज करेगी। अरे उस नुमेरा को तो मैं आफाक के पाँव की जूती बनाकर रखूंगी। What? नुमेरा? वो नहीं, मेरा मतलब ये था कि जस्ट अ मिनट, आपको दौलत चाहिए, आफाक को बदले में नुमेरा चाहिए, और डैडी को आफाक का फेवर चाहिए। वाओ, मुझे जो चाहिए उसकी किसी को परवाह नहीं है। नहीं बेटा तुम गलत समझ रही हो। मैं बस ठीक है मॉम, मुझे जो चाहिए वो मैं खुद पालूंगी। अच्छा तुम मेरी बात तो सुनो। बात ये है कि ताबिंदा, ताबिंदा, नुमेरा को तुम्हारा प्रपोजल मंजूर नहीं, और मोहसिन तुम अपना जवाब खुद ही दे दो। मैंने लंदन जाने का फैसला कर लिया, और फिलहाल मेरा शादी का कोई इरादा नहीं। अब इस किस्से को यहीं खत्म समझो। मेरा साथ तो किसी बेटे ने नहीं दिया, और न ही आपने माँ जी। मोहसिन तुम वहां जाकर शादी तो नहीं कर लोगे? अम्मी मुझे वहां काम है। तुम लोगों को उस वक्त होश आएगा जब आफाक हमें बेमौत मार देगा। आफाक से अपना बिजनेस अलग करना वो एक खराब इंसान है। कहना बहुत आसान है बेटा, लेकिन जमीनों की देखभाल किसानों और हुकूमती हुक्काम के साथ डील करना कौन करेगा है?
ایک نے تو فوج میں جا کر جان گنوا دی اور تم کتابوں میں فرار ڈھونڈ رہے ہو. مجھے افسوس ہے کہ میں آپ کی امیدوں پر پورا نہیں ہوتا، جس کی وجہ سے میں معافی چاہتا ہوں. شجاعت، تم محسن کا مشورہ مان لو، اپنی زمینیں اور اپنا کاروبار ذکاوت اور آفاق سے علیحدہ کر لو. ان کے ساتھ میرے بہت سارے کاروبار ہیں ماں جی، اور آپ ہمارے بزنس کے بارے میں مشورہ نہ دیا کریں. یہ سب کچھ اچھا نہیں ہوگا ماں جی، نہ ہمارے لیے اور نہ ہی نمیرا کے لیے. برف پہ چلنے سے برف پہ